Good afternoon, everybody. So nice to see you after prelims. ठीक है. I think most of you people might have attended the prelims examination this year. How many of you? अरे प्रिलिम किती लोकांनी दिली? शॉक मधून अजून बाहेर नाही आले का काही लोक? आता सांगू की नको नक्की काय होतं? ठीक आहे. Anyway, so those who have attempted the prelim, there might be a possibility that they will go for the mains examination. काही लोकांना असं अपेक्षित असेल की नाही होते बाबा यावेळेस क्लिअर प्रिलिम. You have to be very practical about this particular aspect. Irrespective of anything, if you have given prelim or not given prelim, what is the time period? This time period from June to December, it is about studying the mains. And mains, when you are talking about including both optionals as well as GS part of your syllabus, the most important aspect of mains examination is answer writing, isn't it? And that's why whatever knowledge you will generate through the reading and considering different material available for you, how you represent it in your answer will decide the marks. Can we say so? So when today we have arranged this workshop for you, I think from the morning you are attending different sessions. So right now we will talk about Indian society and social issues part from GS paper, right? So our discussion will be primarily focused on this part of syllabus, but as well as we will talk about what is the importance of answer writing in general for your GS and mains, GS and optional part of it, right? So when we are focusing on Indian society part, what is the trend that UPSC is showing? It is very important to understand, isn't it? Now, if you look at 2023 का mains का question paper, you will find out that they have asked around 100 marks का Indian society. Have you seen it? अरे पाहिला का? Have you seen the question paper 2023? If you go to 2022 का question paper, you will find out they have asked about 75 marks का Indian society. So it is around 60 to 100 marks के बीच में vary कर रहा है, and there is an increasing trend for the Indian society part in the syllabus. So we can safely say in 2024 also UPSC will continue with this particular trend. So what does it gives us? It gives us an idea. If we are dividing our time for the preparation of GS as well as optional, in GS there are 4 papers. In each paper there are multiple subjects, like in GS paper 1, history, geography and society is there. How much time I shall allocate to each particular area? Isn't it? Now this is most important part. 6 महीने का division कैसे करोगे? अगर ये गलत हो गया तो then some part of the syllabus will be well prepared, some part of the syllabus will be less prepared. Now this is a very risky proposition. Even if you are going for 24 ka mains or 25 ka mains or any mains after that, till the time you are not thorough with each and every aspect of the syllabus, mains mein jana is a futile attempt because it will be just for the experience purpose, right? So prelim pass करके ज्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा लाइब्रेरी में हवा होगा, that is another thing. But mains में जाके if you do not clear it, then what will happen? Risk factor will increase because see those people who have attended the prelim and know that they are not going to qualify this, they got 6 month time period to prepare for next mains. But जो लोग अभी mains देंगे उसके बाद they will be exhausted और वो फिर 15-20 दिन इस महीना भर का ब्रेक ले लेंगे, तो they will only remain with 2 months to prepare for mains. उसमें भी प्रीलिम का भी डर रहेगा, they will start with the prelims preparation very early. तो मेंस का जो lacuna या जो less prepared area रहता है, they will never come out of that vicious cycle. So now is the time, your June to December is the time for preparation of mains. ये सब बोलेंगे आपको, but उसमें time कैसे allocate करना है? Now that will be an individualistic scenario based on what is the strength in the part of syllabus that you have. Optional कितना तैयार है, जितना तैयार है उतना कम टाइम उसको लगेगा. अगर तैयार ही नहीं है तो तैयार करने में टाइम देना पड़ेगा. So 500 marks part of your syllabus. सबसे हाईएस्ट वेटेज तो ऑप्शनल को है ना, 500 मार्क्स. उसके बाद में देखना फिर इथिक्स कितना अच्छा तैयार किया, 250 मार्क्स का वेटेज. We are specifically talking about each subject in your examination. Then comes Indian society, which has 100 marks का वेटेज. But if you do the cost benefit analysis, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन इसी सब्जेक्ट का होगा, बिकॉज इसी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन अभी आपने थोड़ी ना शुरू किया. इट इज यू आर मेंबर ऑफ सोसाइटी, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, बट इन एग्जामिनेशन टिल द टाइम यू डू नॉट राइट गुड एनालिसिस, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, मार्क्स नहीं बनेंगे. And that is why if you see it's a great analysis, please listen to it very carefully.
if you look at 2023 के marks of the people who have attempted the mains, UPSC declare करता है, even those who have qualified for the interview, got into the post last year, उनके अगर आप मार्क्स का एनालिसिस करोगे तो GS1 के मार्क्स कम हो गए हैं as compared to earlier years. In 2023, 2020, 2022, 2021, getting 100 plus mark in GS1 was considered as a possible scenario. Those who are got selected into some post, उनको above 100 मार्क्स है ही है GS1 पेपर 1 में. लेकिन अगर इस साल का आप रिजल्ट निकालोगे 2023 का, you'll find out that very few people are successful in doing it. क्यों 100 से नीचे मार्क है GS पेपर 1 में? ये एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है ना. लास्ट 3-4 सालों से ये GS3 को हो रहा है, isn't it? अरे ये एनालिसिस किया नहीं किया? अगर नहीं किया है तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज यू डोंट नो व्हाट टू प्रिपेयर एंड देन यू आर प्रिपेयरिंग इट इज अ रॉन्ग वे ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है, तो GS3 को लास्ट कंसिस्टेंटली 3-4 साल से बिलो 100 मार्क्स लोग स्कोर कर रहे हैं. बट व्हाट हैपेंड विद GS1? दिस इज अ न्यू फेनोमेना, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. एंड अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, people are scoring less mark in GS1 because they are not preparing Indian society in that way. अगर आप देखोगे तो out of 250 marks in GS paper 1, if Indian society has 100 marks का weightage, history plus geography total means 150 marks. तो 80-70 ऐसा अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो अपना आप जितना टाइम हिस्ट्री को देते हो, जितना टाइम ज्योग्राफी को देते हो, क्या आपने उतना टाइम दिया है इंडियन सोसाइटी को? यू नीड टू थिंक अबाउट इट, राइट? उतना देने का जरूरत भी नहीं है, बिकॉज प्रीलिम में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी फायदे में रहेगा. बट उतना प्रोपोर्शनल टाइम भी, आधा टाइम भी हम लोग नहीं देते, बिकॉज वेन एवर वी लुक एट द क्वेश्चंस वील फील कॉम्प्लेसेंट. इसका मतलब समझते हो ना, कॉम्प्लेसेंट, कि जो है उसमें खुश है. वी फील कॉम्प्लेसेंट, ये तो इजी है, ये तो मैं लिख लूंगा जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन. बट क्या सच में बैठ के लिख के देखा? नाउ व्हेन यू विल डू दिस आंसर राइटिंग, देन यू विल अंडरस्टैंड क्या क्वेश्चन इज इजी, आई कैन राइट इट, बट आई कैन राइट ओनली कपल ऑफ पॉइंट्स. इट विल गिव यू 2 marks, but getting 2 marks out of 10 is not it's not an objective to go for mains exam. If you are not getting 4, 5, 6 marks minimum, then it is not at all helpful to get you good marks. Out of 250 अगर आपको 100 marks के ऊपर लाना है तो अराउंड 40% मार्क्स तो इस क्वेश्चन में आना चाहिए ना, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन. सही है कि नहीं सही? कुछ क्वेश्चन में बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, 50% आएंगे. कुछ क्वेश्चन होंगे जो एक्सेप्शनल क्वालिटी लिखा होगा, उसमें 60% आ जाएंगे. तो एवरेज आउट करके आपको मोर देन 40% मार्क, 45% मार्क्स लाना पड़ेगा. देन एंड देन ओनली इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू क्रॉस दिस 100 मार्क्स का बैरियर इन टोटलिटी, टू क्रॉस दैट 400 मार्क्स का बैरियर इन जनरल स्टडीज. आउट ऑफ 1000 4 पेपर है ना, 250 into 4 1000, उसमें 400 प्लस मार्क्स आना चाहिए. देन एंड देन ओनली योर ऑप्शनल सब्जेक्ट विल हेल्प यू टू गेट इनटू गुड रैंक. अरे आप समझ रहे हो? तो ये थॉट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है फाइनल. इफ आई एम एमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मार्क्स इन माय एग्जामिनेशन, तो मुझे इंटरव्यू में इतने मार्क्स एवरेज आने चाहिए. नाउ लॉट ऑफ पीपल विल थिंक दैट मैं तो तोप हूं, मुझे आउट ऑफ 275 274 तो आ ही जाएंगे, मतलब उसमें क्या है. तो इफ आई माइनस दैट दिस इज द स्कोर लास्ट ईयर टॉपर हैज, तो इतने मार्क्स मुझे जीएस मतलब मेंस में लाने हैं, राइट? बट थिंक अबाउट इट, सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर, लुक एट द गाय इन द मिरर, उसको दोगे आप 190 मार्क्स, बहुत अच्छा प्रिपेयर किया तो 200 मार्क्स. हमारी कैंडिडेट थी ना रम्या, अभी टॉपर स्टॉक हुए. आई थिंक सम ऑफ द पीपल माइट हैव अटेंडेड इट. जिन्होंने नहीं किया यूट्यूब पे देख लो, इनके एकेडमी के चैनल पे है. So she got 206 marks in interview, but her interview was exceptional because the chairman in the interview only told her, now people like Mother Teresa are going to be part of service. When she told me that after the interview, मैं बोला 2 ही सिनारियो हो सकते हैं इसके. एक तो एक्सेप्शनल मार्क है, नहीं तो अगले साल वापस जाना पड़ेगा. Because this comment can be interpreted in both way. मदर टेरेसा का अगर रिप्रेजेंटेशन देते तो मतलब a person with a pure heart is entering in bureaucracy. That is one example. Or a person which is not suitable for bureaucracy is trying to enter into bureaucracy. ये भी हो सकता है. But luckily for Ramya, she got 206. They are exceptional marks. 206 marks. Very good marks.
बट एवरेज अगर आप देखोगे 180, 190, 180, 175 ये मार्क्स आ रहे, तो यही पकड़ के चलते 175, तो ये निकालो, फिर देखो टॉपर्स के मार्क कितने, उतने अगर जीएस में लाने तो यू हैव टू स्कोर 400 प्लस मार्क्स इन योर जनरल स्टडीज। उसका मतलब है जीएस पेपर 1 में 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे, अरे लाने पड़ेंगे ना, राइट? तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया ओवरऑल सिनारियो, और ये दिमाग में रख के चलना है। तो उसमें जीएस पेपर 1 में अगर मुझे 100 मार्क्स लाने, आई नीड टू डू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कितना टाइम देना पड़ेगा, कितने मार्क्स आएंगे। तो ये सब्जेक्ट है, ये आपको सबसे कम समय में सबसे ज्यादा मार्क्स देगा। Believe me, if you spend 2 weeks on this particular subject, you will be able to get at least 50% plus marks in whatever question they are asking. Because lot of things you know, you just need to augment on it. You need to increase the dimensions, increase the depth of your argument. कुछ examples याद करने पड़ेंगे, कुछ reports याद करने पड़ेंगे, जो आंसर में लिख सकोगे तो आंसर के मार्क बढ़ेंगे। बट ये टाइम देना पड़ेगा। ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, अरे समझ गए। दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्वेश्चन अंडरस्टैंड होना चाहिए, राइट? नाउ विल टेक फ्यू क्वेश्चंस टू डिस्कस, राइट? मॉडल आंसर्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड, बट विल नॉट लुक एट द मॉडल आंसर्स व्हाइल वी आर डिस्कसिंग। आई विल अपलोड इट ऑन टेलीग्राम चैनल, यू रीड इट लेटर ऑन, जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हम यही बढ़िया डिस्कस करेंगे। ये है तीसरा एस्पेक्ट यूपीएससी प्रिपरेशन का, यूज योर टाइम प्रूडेंटली। मेरे पास रिसोर्स है तो मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब आई एम रीडिंग 4 न्यूज़पेपर्स अ डे, नॉट यूजफुल, नोबडी इज रीडिंग इट, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है? या करंट अफेयर्स का एनालिसिस देख रहे हो, 4 अलग अलग यूट्यूब चैनल ज्वाइन किए हो, चारों के ऊपर देख, नहीं एक ही देखो, उसके नोट निकालो, उसको रिवाइज करो, बेटर अप्रोच। आई एम रीडिंग 5 बुक्स ऑफ 1 टॉपिक ओनली, नो, रीड 1 बुक 3 टाइम्स, मेक नोट्स, राइट आंसर, ये बेटर अप्रोच है। अरे समझ रहे हो? ये थर्ड एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का। दिस इज जनरल फॉर एवरी student and every subject of preparation, but let's try to understand specifically related to Indian society, where the most challenging part is that you feel you understood the question, but really you understood the demand of the question or not, is a big question mark. How come? Let's take first example. Look at this question. Simple question है, पढ़िए। सिंपल। आई थिंक जिन्होंने मेरे साथ इंडियन सोसाइटी किया है, हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड इंडियन सोसाइटी जीएस क्लासेस विद मी? मोस्ट ऑफ द पीपल। किसने बंक मारा था? पछताओगे अभी, सुनो, ठीक है? नाउ इन दैट क्लास आल्सो वी डिस्कस दिस इन डिफरेंट वे, बिकॉज सी दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन 2018 का मेंस का क्वेश्चन पेपर, बट इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे पीछे भी आ रहे हैं, and that's why we are trying to take this question. Where does it suits in our where does it place itself in our syllabus? Salient features of Indian society. तो ये जो फीचर है कास्ट सिस्टम एज अ फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्या बात कर रहे हो? कि दे आर सेइंग कि कास्ट सिस्टम चला गया या अभी तक है, यही तो आर्ग्यूमेंट पूछ रहे हैं ना। तो मैंने क्या किया, आई रेड द क्वेश्चन, आई अंडरस्टूड द बेसिक डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं? दे आर सिंपली आस्किंग द डिबेट, इज कास्ट सिस्टम हैज द कास्ट सिस्टम बीन एनिहिलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। यही तो बोल रहे थे ना डॉक्टर अंबेडकर। देखो स्कॉलर का लेके आया मैं आंसर में, लिखना पड़ेगा आंसर में, इजंट इट? तो क्या आर्गुमेंट है उनका? कास्ट सिस्टम शैल बी एनिहिलेटेड, बुक लिखा उन्होंने। बट आज आफ्टर 75 years of independence we do see caste still remains in India। तो वो पूछ रहे हैं, उन्होंने रीजन भी दिया है क्यों हो रहा है, क्वेश्चन में रीजन दिया है ना। क्या रीजन है? इट इज एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशन फॉर्म एंड हेंस कैन नॉट बी इरेडिकेटेड। बट आगे जाके बोलते कमेंट करो, आप बताओ इसका क्या है, आप इसके ऊपर क्या करो, एक कमेंट लिखो, ठीक है? तो ऐसे नहीं लिखना है नाइस क्वेश्चन नेक्स्ट पेज, ठीक है? फिर एग्जामिनर भी लिखेगा नाइस आंसर नेक्स्ट ईयर। That does not, कमेंट का मतलब ये नहीं है, कमेंट का मतलब इसके ऊपर सोचो और अभी आप इसके ऊपर लिखो। तो क्या लिखना है इसके ऊपर? तो आपको लिखना है ये जो आर्ग्यूमेंट वो कर रहे हैं कि कास्ट सिस्टम न्यू एसोसिएशन एंड आइडेंटिटीज कर रहा है, ये इसके बारे में लिखो। कहाँ कर रहा है, कैसे फॉर्मेट में कर रहा है, एग्जाम्पल कोट करो इसके बारे में, ये आर्ग्यूमेंट है ऊपर, समझ रहे हो? और उसके बाद हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट को एज अ रीजन ले रहे,
बिकॉज ऑफ दैट कास्ट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड। तो इसको आप थोड़ा सा अलग एंगल से भी लिख सकते हो कि हाँ, बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस एसोसिएशनल फॉर्म्स कास्ट इज टेकिंग, कास्ट इज स्टिल प्रेजेंट इन द सोसाइटी। ये आर्गुमेंट लिखना है, बट आगे जाके दूसरा आर्गुमेंट लिखना है जो आधे लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि यही पे आंसर खत्म करेंगे। वो बोलेंगे यही तो पूछा था, क्या पूछा था, क्रिटिकली एनालाइज करो। नहीं, आगे एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा ना कि सब जगह पे नई आइडेंटिटी या नया एसोसिएशनल फॉर्म में कास्ट सिस्टम आया, इसलिए वो कास्ट सोसाइटी में परसिस्ट करता है, ऐसे सब जगह पे नहीं दिख रहा है। इन सम ऑफ द सोशल फेनोमेना और सिस्टम, कास्ट इज लूजिंग इट्स इंपॉर्टेंस। It has become less evident, less powerful, less dominant, less important part of social system. ये भी तो एक आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा ना। तो मैंने पहले आपको क्या बताया, दिमाग में क्या आना चाहिए, पहले स्ट्रक्चर आया आंसर का। अरे आप समझो, आंसर राइटिंग वर्कशॉप इसको बोला है, सुबह से आप बैठे हो, शाम तक बैठना, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद खाना खाने का ब्रेक होगा, मस्त खाना खा के आ जाओ। देन इन थर्मास ब्रिंग टी आल्सो, बट पूरा करना। समझ लो इसका मतलब क्या है, वर्कशॉप क्यों है, क्योंकि सारी चीजें नहीं बता सकते, बट ओवरव्यू जरूर बताएंगे। इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन, पहले दिमाग में बनना चाहिए स्ट्रक्चर की मैं क्या लिखूंगा। एंड बिलीव मी, ये बन सकता है, सबके दिमाग में बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइम में बनना चाहिए। फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन, यू हैव 3 hours टू राइट 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। कैलकुलेशन कर लो, सीसैट टॉप में किया है, 7.5 मिनट आएंगे 10 मार्क के लिए, 7.25 आ जाते, ठीक है। लेट्स टेक 7 minutes 15 seconds फॉर 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें से 15 सेकंड तो आप हटा दो, क्योंकि ओवरऑल आपके 3 घंटे में 5-10 मिनट तो इधर उधर जाएंगे ना। इन्विजिलेटर आएगा, साइन लेगा, नाम लिखोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे, क्लासरूम में कौन कौन बैठा है वो देखोगे। मुझे कोणी ओळखीचं आहे का असं म्हणतो रे, उसमें 5-10 मिनट छोड़ दो, तो एवरेज करके 7 minutes आ गए। 10 मार्क्स क्वेश्चन, 7 minutes फॉर ईच 10 मार्क्स क्वेश्चन। ये 7 मिनट में से 10 सेकंड तो पढ़ने में चले गए, 15 सेकंड चले गए। नाउ यू हैव 5 to 10 seconds in which you have to form this whole structure in your mind। तो एक्चुअली मिलेंगे 6.5 मिनट्स लिखने को। तो जब भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ये 6.5 मिनट में लिखना आना चाहिए, तभी जाके। ये तो मैं एक आंसर की बात कर रहा हूँ, आपको तो क्या लिखने हैं, 20 आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद में दूसरा पेपर भी होता है ब्रेक के बाद, ये पता है ना। अरे ये पता है ना सबको, मेंस का स्ट्रक्चर तो पता है ना कैसे होता है। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, ऐसे चलेगा हफ्ते भर एग्जाम, और हफ्ते के भर के बाद में हाथ पे सूजन भी आ जाती है। इट्स नॉट इजी, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। एंड अगेन, राइटिंग प्रैक्टिस डज नॉट मीन्स कि मैं बैठा हूं 2 आंसर लिखे। राइटिंग प्रैक्टिस मीन्स कम से कम 1.5-2 घंटे बैठ के इन द सीक्वेंस यू आर राइटिंग सम टेस्ट। एंड फॉर दैट पर्पज आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए, जो फ्रीडम मॉडल जीएस है, वो लॉन्च हो रहा है जुलाई महीने से। सब लिखो, जो नहीं लिखेगा वो खुद सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकता है। दिस इज नथिंग कि सेल्फ प्रिपेयर नहीं हो सकते, सब हो सकते हैं, बट सब एकलव्य भी नहीं है ना। हम एकलव्य भी नहीं है, हमें तो द्रोणाचार्य बेटे, वो भी नहीं पढ़ना चाहते, isn't it? तो कैन यू डू अ सेल्फ स्टडी? यस यू कैन डू अ सेल्फ स्टडी। कैन डू अ सेल्फ राइटिंग, एक्शन राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, इवैल्यूएशन के लिए ला सकते हो, फिर भी लेके आओ, फिर भी करेंगे हेल्प। बट बिलीव मी, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। स्ट्रक्चर्ड आप उसके साथ करोगे तो बढ़िया होगा, और उसमें फिर 1-1.5-2 घंटा 3 घंटे बैठने का, यू विल गेट दैट इनटू एन हैबिट, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ हमने 15 सेकंड में क्या किया, आंसर का स्ट्रक्चर दिमाग में बन गया। उसके लिए लगेगा वेरी हाई सुपर थिंकिंग पावर, और वो कहां से आएगा, सबके पास है, सिस्टम में है, उसको सिर्फ यूज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, यू नीड टू हैव अ गुड कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन योर माइंड, जो बहुत झट से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। बिकॉज सोसाइटी के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इंटरकनेक्टेड आएंगे। दे विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ एस्पेक्ट। एक और क्वेश्चन लेंगे थोड़ी देर के बाद, क्लाइमेट चेंज और वुमन के बारे में पूछे, क्या लिखेंगे? लोग इसको देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं। थिंकिंग, दे विल बी थिंकिंग फॉर कपल ऑफ मिनट्स व्हाट टू राइट, फिर लिखने के लिए मिनट बचे 4-4.5, लिखेंगे क्या उसमें? तो उसमें नहीं आएंगे मार्क्स, समझ रहे हो? तो वेरिड कंटेंट पढ़ा होना चाहिए। सो न्यूज़पेपर इज एन इनएस्केपेबल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। 5वां पॉइंट, अरे
5 पॉइंट बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना कौन सा 5वां पॉइंट बोल रहा हूँ? न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, स्पेशली फॉर इंडियन सोसाइटी, क्योंकि इसका स्टैटिक पोर्शन तो है, सब लोगों ने पढ़ा है। इसमें क्या पढ़ना है? रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ग्लोबलाइजेशन, सबको पता है, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, सबको पता है, पढ़ा है, सबके पास नोट्स है, बढ़िया है। जिनके पास नहीं है बनाओ। आई थिंक लेक्चर में मैंने बोला है कि नोट्स बनाने हैं इंडियन सोसाइटी के। बैठोगे 15 दिन 50 पेज, इतना ही टाइम लगेगा, इतना ही पेजेस लगेगा, एक ही बार करना है काम, उसके बाद में अपडेट करना है। थ्रू द न्यूज़पेपर डिफरेंट आर्टिकल्स आर विल बी देयर, यू जस्ट नीड टू रीड एन आर्टिकल, क्या बताया है। आज के आर्टिकल का एग्जांपल दूंगा, आज न्यूज़पेपर में आया है ना, पावर सर्ज बिकॉज ऑफ हीट वेव इन नॉर्थ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, असतो का असा न्यूजपेपर, असा असतो बघा, पांढऱ्या रंगाचा काळा काळा लिहिलेला असतो, आजचाच आहे ना न्यूज़पेपर, जस्ट ट्राई टू फाइंड इट। हाँ तुम्ही हिंदू आस्ता, आई नो इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ जस्ट ट्राई टू फाइंड इट, यही न्यूज का यूज करेंगे आज के आंसर्स में, कैसे यूज करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन, जो आपके आंसर्स में डायनामिज्म लाएगा, उससे आपके मार्क्स अबव एवरेज बढ़ेंगे। स्टैटिक पोर्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी विल गिव यू एवरेज मार्क विच हैज टू बी रिटन, वो लिखने के देयर इज नो ऑप्शन नॉट टू राइट इट, वो तो लिखना ही लिखना है। बट उसके आगे जब आप ये करंट डायनामिज्म डालोगे, एग्जांपल्स डालोगे, दैट विल इंक्रीज योर मार्क, और वही तो आंसर्स में से मार्क बढ़ा के वी हैव टू बी डिफरेंट दैन ऑल पीपल हु आर राइटिंग द मेंस एग्जामिनेशन। अरे सही है, कितने लोग मेंस लिखते हैं वो भी नहीं पता है। हाँ कुछ लोग बोले सर मुझे क्या करना है, मुझे तो एक ही नंबर चाहिए, देयर शैल बी वन पोस्ट, आई विल गो देयर, आई विल क्रैक इट, no problem, good attitude, but tell me how many people write mains examination? 13, let's say 13-14 हजार लोग लिखते, लास्ट टाइम 13-14 हजार लोगों ने लिखा। चलो समझो कि भगवान की दया से बिना प्रिपेयर्ड वाले 2-4 हजार लोग पास हो गए, 2000 लोग, उनको निकाल दो, 12,000 बचे। ये 12,000 खूंखार खिलाड़ी है, हाँ उसमें से चलो 2,000 भी निकाल दो, पहला अटेम्प्ट था, वो भी भगवान की और पेरेंट्स की और टीचर्स की दया से हो गए पास। बट जो 7-8 हजार लोग बचेंगे ना, दे आर रिपीटर्स। रिपीटर में से सेकंड में से, थर्ड में से, फोर्थ में से, लास्ट 2 इंटरव्यू दिए हैं, कुछ ऐसे भी होंगे कि पोस्ट निकला है, वेटिंग लिस्ट में नाम है, कुछ होंगे आईआरएस मिला है, नहीं आईएएस ही चाहिए, वापस दे रहे हैं, ये सारे लोग होंगे। अरे लास्ट ईयर का रैंक 1 कौन था? ये वॉज एन आईपीएस गाय, स्टिल गिविंग इन मेंस एग्जामिनेशन। जब एग्जाम हॉल में बैठा तो पीछे वाले को थोड़ी ना पता था ये आईपीएस है, एग्जामिनर को भी नहीं पता था, बट उसके आंसर शीट में दिखेगा। Now think about it. You will find around 10,000 people. They are खूंखार warriors in mains examination. उनके साथ competition है। तो आप लोगों को क्या होना चाहिए? Even if this is your first or second attempt or first mains, you need to experience yourself in a such a way that writing so many answers as equivalent to the experience of 2 mains, 3 mains candidate. ये तो कर सकते हैं ना? या वेट कर सकते हैं 3 अटेम्प्ट, 2 ऑप्शन है। बेटर क्या है? We'll put more efforts, we'll write so many answers that our answers will show the quality of a person very similar to the quality of the person who is writing maybe 4th mains, उसके लेवल का आंसर मैं लिख रहा हूँ। उसके लिए सारी चीजें करनी पड़ेगी। अरे आप समझ रहे हो? तो 5वां पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, डायनामिज्म आना चाहिए, वो आने के लिए करंट अफेयर्स मतलब न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर में जो बड़े आर्टिकल आएंगे, ओपन एड आएगा, एक्सप्लेन्ड पेज आएगा इसका, इंडियन एक्सप्रेस का, उसके बाद द हिंदू के एडिटोरियल के बाजू के आर्टिकल्स आएंगे, ये पढ़ने पड़ेंगे आपको। दे आर नथिंग बट आंसर्स ना, या ऐसे छोटा ऐसे लिखो, तो उसमें से आर्ग्यूमेंट्स कैसे डेवलप किए वो अगर आप समझे तो यू विल बी एबल टू डेवलप सच टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। सो सिर्फ कंटेंट होने से भी नहीं चलेगा, वी आर मूविंग अहेड, मोर देन कंटेंट क्या चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट अच्छा होना चाहिए और उसको सब्सटेंशिएट अच्छी तरीके से किया होना चाहिए। तो इसके आंसर के बारे में बात करते हैं, राइट। तो क्या लिखेंगे इस आंसर में? सिंपल सा तो क्वेश्चन है, अभी दिमाग में बैठ गया। पहले क्या लिखना है कि हाँ कास्ट सिस्टम क्या करता है, नई आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स इट इज डेवलपिंग। तो हम लिखेंगे हाँ नई आइडेंटिटीज और एसोसिएशनल फॉर्म ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, कौन सी न्यू आइडेंटिटीज इज फॉर्मिंग? देन आई विल ट्राई टू अगेन गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट कि पॉलिटिकल क्या कर रहा है, आइडेंटिटीज ले रहा है। कौन सी? खाना खा के आए, ब्रेक में थोड़ा
यूपीएससी एग्जाम हॉल में लेट नहीं जाना है। न्यूज पढ़ी क्या? इन न्यू संभाजीनगर एरिया some people reached late to examination center यूपीएससी, उन्होंने बोला नेक्स्ट ईयर आओ। यूपीएससी इन दिस वे इज वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर्स, ठीक है, तो कभी लेट नहीं जाना है। चलो, पॉलिटिकल फॉर एसोसिएशंस या न्यू आइडेंटिटीज ले रहा है, कैसे बताओगे? कास्ट सिस्टम और पॉलिटिकल आइडेंटिटीज क्या बताओगे? अरे कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये बात किया था क्या? कास्ट बेस्ड प्रेशर ग्रुप्स, दो ना फिर एग्जाम्पल। बहुजन समाज पार्टी, अरे दे सकते हो क्या? तो ये तो देखो, दे दो एग्जाम्पल। वंचित आघाड़ी दे सकते हो, नाम में वंचित है। कौन वंचित है? कास्ट बेस्ड वंचित ग्रुप। वंचित मीन्स डिप्राइव्ड ग्रुप दे आर टॉकिंग अबाउट। Look at the candidates they are sponsoring in the election. They are mostly from the down to order sections of society based on caste. Can we say? Look at pressure groups formed on the basis of caste group. Lot of pressure groups are there. Right? So political angle लिखा, फिर economic angle भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे economic angle में? बिझनेस असोसिएशन लिखो। ध्यान, क्लास में बोला ना डिक्की का एग्जांपल दिया था, नाही झाला, हुशार आहे मुलगा, मस्त आहे, चालेल। बघा डिक्की का एग्जांपल सुने, डिक्की एमसीसीआई, हाँ सुना है। दलित क्या है? चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इकोनॉमिक बेस या दूसरा भी एंगल दे लो ना, दो पॉइंट को कनेक्ट करो। प्रेशर ग्रुप का नाम लिखा है यहाँ पे, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को क्लब करेंगे और बताएंगे डिमांड फॉर रिजर्वेशन। अरे है क्या? फिर दे दो एग्जांपल। क्या एग्जांपल दो? ओके, हाँ अरे सही है एग्जांपल। नाम नहीं लिखना है उनका, नाम नहीं लिखना है किसी का, और थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे एग्जांपल। मतलब क्या करना है? यू कैन से दैट डोमिनेंट कास्ट लाइक मराठास, पाटीदार्स, जाट्स आर डिमांडिंग रिजर्वेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया एग्जांपल। हाँ बरोबर है, तुम्ही म्हणता ते बरोबर है, बट डोंट राइट नेम की दिस इज हैपनिंग, राइट अ बिग वाला एग्जांपल। सो व्हाट यू आर सेइंग, व्हाई रिजर्वेशन इज बीइंग डिमांडेड? इट इज बीइंग डिमांडेड फॉर द रिजर्वेशन इन एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इकोनॉमिक के ही बारे में ना, एजुकेशन में क्यों मांग रहे हैं रिजर्वेशन? कारण जॉब पाहिजे मुलांना, बरोबर की नाही? तो इट्स एन इकॉनॉमिक डायमेन्शन। थिंक अबाउट सोशल डायमेन्शन। व्हाट इज सोशल डायमेन्शन? हे पण एक्झाम्पल आपण डिस्कस केलं होतं ना। मॅरेज, 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 व्हेरी करेक्ट। तर मॅट्रिमोनीचं एक्झाम्पल देऊ शकता, ठीक आहे। आठवा कुठल्या कुठल्या वेबसाईटवर तुम्ही रजिस्टर केले, देऊन टाकायचं, ठीक आहे। टिंडर नॉट ऍप्लिकेबल, राईट? So 2 examples you can give. In India, still lot of marriages that are happening are arranged marriage, which are happening within the caste groups. Within the caste ही marriage होता है इंडिया में आज भी। Yes, intercaste marriages are happening, but larger picture देखो ना, ज्यादा marriages क्या हो रहे हैं? Still caste based. Technical term use करना चाहते तो लिख लो, endogamous marriages are happening. ठीक है, वर्ड यूज किया तो बढ़िया बात है। पहला इंपॉर्टेंट चीज है पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट आया है तो कंटेंट को क्या कर सकते हो आप? इंप्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग बेटर टर्मिनोलॉजी। बेटर का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी है, इंग्लिश में ही होगी बट उसकी एक अपनी टर्मिनोलॉजी है। कहाँ मिलेगी ये? कहाँ मिलेगी? बहुत डिफिकल्ट है इसको ढूंढना। एनसीईआरटी बुक्स में होती है, बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, तो किसने इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी पढ़ी है, उनको मिलेगी ये टर्मिनोलॉजी वहां पे। बहुत इजी है, एक बार पढ़ लो, उसमें से टर्मिनोलॉजी निकाल लो और अपने नोट्स में उसको डाल दो। कोई कलर कोडिंग कर लेना उसको कि क्या था, हाँ वही जो भी था, ठीक है, उसको कलर कोडिंग कर लेगा। ये एनसीईआरटी में टर्म है, ये सोशियोलॉजी का टर्म है, बट इंडियन सोसाइटी की जीएस के एनसीईआरटी में दिया ना, बक्का यूज कर लो। जो जो इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटीज में स्कॉलर भी दिए उनको भी यूज करेंगे। अरे आप समझ रहे हो? तो मैं बता रहा हूँ कंटेंट कहाँ से उठाना है।
बहुत डिफिकल्ट है, एनसीईआरटीज मिलती नहीं आजकल मार्केट में, बहुत स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है। तो दो चीज बताई कि कास्ट मैरिजेस आर स्टिल हैपनिंग, एंडोगेमस मैरिजेस, और फिर बताओगे इवन आफ्टर द कमिंग ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज कंसिडर्ड एज अ, क्या बोल सकते हो, लिबरेटिंग फोर्स बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी को, स्टिल टेक्नोलॉजी ने भी कास्ट को, क्या टेक्नोलॉजी खुद को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया कास्ट सिस्टम के साथ। देखो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स बन गए कास्ट बेस्ड, मराठा मैट्रिमोनी, ब्राह्मण मैट्रिमोनी, और उसमें ऐड आते तमिल ब्राह्मण चाहिए, गुड लुकिंग, डिफिकल्ट फाइंड, ठीक है, लिखते हैं ऐसा। सी वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, कास्ट बेस्ड ही हो रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस पे। देखो तो ये एंगल लिख लिया, क्या हो रहा है, बिकॉज कास्ट इज टेकिंग न्यू आइडेंटिटीज। कैसे, तो अर्लियर कास्ट वॉज द वी कैन से ओनली फैक्टर दैट डिटरमाइन पॉलिटिकल पोजिशन ऑफ ग्रुप्स। तो क्षत्रिय हो तो ही राजा बन सकते हो, आज समझ रहे हो, आज भी वही है, आज भी वही है। टेक अ सिंपल एग्जांपल, लुक एट वॉट एवर स्टेट यू आर फ्रॉम, look at the number of chief minister that particular state had, try to find out the caste of that individual, that individual belongs to kshatriya caste, kshatriya varna, mostly no, किसी ने नो बोला ना, ते उप मुख्यमंत्री we are talking here about general case, most of the case. You take an example of, let's go away from Maharashtra, लगेच लोक सेन्सिटिव्ह होते. You go to Andhra Pradesh, generally you will find out people from Reddy community, generally. You go to Karnataka, Lingayat community, may not be Kshatriya all the time, but upper caste. Understood? कळाले का अर्थ? ते आन्सर मध्ये लिहायचं नाही, आय एम जस्ट कनेक्टिंग इट बॅक की ओल्डर टाइम्स मध्ये कसं होतं, पण नवीन फॉर्म मध्ये पण तेच. हे लिहिलं फर्स्ट पार्ट, हे जनरली लोक लिहिणार. सेकंड पार्ट बऱ्याचदा लोक लिहायचं विसरणार की नाउअडेज इन सम ऑफ द आस्पेक्ट कास्ट ब्रेक इज बिकमिंग इररिलेव्हंट. याच डायमेन्शन मध्ये बघूया, एक दोन पॉइंट सांगूया. लुक एट इकॉनॉमिक डायमेन्शन्स. अर्लियर कास्ट सिस्टम डेव्हलप जजमानी सिस्टम. Occupational division, you this caste, this occupation. It was a strict relationship, you cannot change it. But what is happening now? Jajmani system has broke down. मराठीमध्ये बलुतेदारी पद्धत असते का रे गावाकडे? Now it is almost broke down. Still there in some part of the country, still it is happening. But it is not a kind of compulsory or rigid as it used to be there in the earlier period. That is an argument. So is it completely wiped out? No. Jajmani system is still there, Balutedari system is still there, but not as dominant or as rigid as it used to be earlier. Argument समझ रहे हो? Look at other factors, बताओ why it is happening. So you can connect it to economic and other factor. Why it has broke down? Urbanization and industrialization is the phenomenon which has resulted into it. Rural society has always supported caste system. That's why it never changes form. For thousands of years, India remained a rural society, hence caste system survived. Now after industrialization, it is becoming an urban society, so the social change is happening, and that's why to adapt to this social change and to survive in the society, caste is taking new forms. Can we say so? Isn't it? And that's why you will find out in urban area also, some occupations are cornered by some communities only. So new form है. तो जजमानी सिस्टम ब्रोक डाउन, रिजिडिटी गया, बट फ्लेक्सिबिलिटी में भी कास्ट ही अगेन क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है. एग्जाम्पल देता हूँ, लिखो मत, ये आम जिंदगी एग्जाम्पल है, चाहे तो लिख भी सकते हो. लुक एट द होटल इंडस्ट्री इन जनरली इन इंडिया और इन महाराष्ट्र पर्टिकुलर. you'll find out one particular community is dominating over it largely. Largely. Isn't it? So can we say it is taking new forms? Yes, we can say. And then we can add few more points. Now, sixth aspect of our today's discussion. पांच तो हो गए.
लोग ऐसे करते 5, कौन से 5? हम 5 जो भी थे, राइट? 6, 5वां जो न्यूज़पेपर डायनामिक्स बोला, यस। 6th एस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइम कंसिडरेशन इन योर एग्जाम। मेरे पास लिखने के लिए बहुत पॉइंट्स, तो क्या मैं सब लिखूंगा? तो 6th एस्पेक्ट है टाइम एंड वर्ड लिमिट कंस्ट्रेंट यू हैव टू पुट योरसेल्फ। क्योंकि एग्जाम ने बोला है ना कि 7.5 मिनट से आपको टाइम कंस्ट्रेंट, वर्ड लिमिट भी तो एक कंस्ट्रेंट है। उन्होंने बोला है ना 10 मार्कर है 150 वर्ड्स में लिखो, एंड यूपीएससी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। दे हैव गिवन अ वर्ड लिमिट, यू हैव टू फॉलो इट। यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि मैं पेज भर के आऊंगा, उन्होंने वो दिया भी नहीं है। दे विल गिव यू क्वेश्चन, दे विल गिव यू 2 ब्लैंक पेजेस 3 ब्लैंक पेजेस डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अगले पेज पे अगला क्वेश्चन है, उसको स्क्राइब करके नीचे आंसर लिखना है, प्लीज कंटिन्यू, ऐसे कुछ नहीं करना है। इफ यू डू दैट एग्जामिनर विल नॉट बी टॉलरेटिंग इट। यू डू नॉट मेस अप विद द आंसर शीट, जहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है वहीं पे उसका आंसर लिखेंगे और उसी इसमें लिखेंगे। और वो लॉजिकल भी है, 150 वर्ड लिखने के लिए आपको 6.5 मिनट आराम से लगेंगे। आप प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है? और जो फिर सोचने के लिए टाइम, बाकी का टाइम, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। इन 6.5 मिनट 150 वर्ड इज अ गुड राइटिंग स्पीड। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज योर राइटिंग स्पीड। कभी किया है इसके ऊपर काम किया है कभी? तो देख लेना, आज समझ में आ गया क्या करना है। आज क्या करना पड़ेगा? गो होम एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी वर्ड्स आई कैन राइट इन लेट्स से 7 मिनट्स। काउंट इट डाउन, कितने वर्ड्स लिखते हो। ये ज्यादा होंगे थोड़े, बहुत चांस है कि इट विल बी मोर बिकॉज यू आर राइटिंग वन आंसर। बट थिंक अबाउट, कैन यू कंटिन्यू टू डू इट फॉर द 6 आवर्स अ डे, 3 घंटे के 2 पेपर, तब बनेगा कैपेसिटी। अरे सही है, तो ये अभी से करना पड़ेगा। समझ गए इस क्वेश्चन के बारे में? ठीक है, तो टाइम लिमिट के साथ साथ वर्ड लिमिट भी इंपॉर्टेंट है। ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर मेरे को 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है और इफ इट इज अ 15 marks question, I have to write it in 250 marks, then what is important? There will be some introduction, some conclusion. Yes, it has to be written, right? It has to be introduced, the question has to be introduced and question has to be concluded. बीच में main body लिखेंगे। तो अगर let's say it is a 250 marks का question, तो around 30 to 35 words का introduction होगा, 30 to 40, ये सारा मिलके let's say about 70 words चले गए। फिर भी 180 वर्ड्स का मेन बॉडी रहेगा। इस 180 वर्ड्स में सपोज आई एम राइटिंग 20 to 30 वर्ड्स का एक पॉइंट, तो आई शैल बी राइट एटलीस्ट 7, 8, 9 पॉइंट्स इन दैट आंसर। सही है कैलकुलेशन? तो एक तो 7-8 पॉइंट चाहिए। आई एम राइट टॉकिंग अबाउट बिग आंसर ना, 15 मार्क का, ठीक है? 10 मार्क का होगा तो 150 वर्ड, यही कॉम्प्रेस हो जाएगा, तो उसमें 5-6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे 7-8-9 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तो पहले तो उतने पॉइंट्स चाहिए, ठीक है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हर पॉइंट अलग अलग होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कर सकते कि पॉइंट लिखा है लैंग्वेज चेंज सेकंड पॉइंट, फिर एक पॉइंट लिखा कॉमा, फिर उसके नीचे 2 पॉइंट करके लिखे, एग्जामिनर बोलेगा वाह, मार्क्स नहीं मिलेंगे। देयर हैज टू बी एक्चुअल जेन्युइन डिफरेंट पॉइंट्स इन योर आंसर। और उसमें नेक्स्ट पार्ट होगा, नाउ व्हेन यू आर रियली वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, आपके पास 12-15 पॉइंट होंगे। If you are really prepared ना, आपके पास 10-12 पॉइंट आराम से होंगे। देन कौन से उसमें से 8 पॉइंट लिखने हैं, दैट शैल बी द जजमेंट ऑफ अ कैंडिडेट ड्यूरिंग दैट एग्जामिनर हॉल, लुकिंग एट द क्वेश्चन दैट इज देयर। कि क्वेश्चन की डिमांड को जो एग्जैक्टली सूट करता है वही पॉइंट में ऊपर लिखूंगा। दे विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रेजुअली मैं कम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाऊंगा, क्योंकि मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले एग्जामिनर को दिखा के बताना है कि दिस इज अ गुड कैंडिडेट। गो इनटू द साइकी ऑफ द एग्जामिनर, कंसीडर योरसेल्फ एज एन एग्जामिनर। आज करके देखते हैं ना, आज घर जाने के बाद 2 आंसर लिख डालो, कोई भी 2 क्वेश्चन लिख लो, और उसको 2 टाइप से आप चेक करना। एक खुद पढ़ना, और खुद पढ़ने के बाद अगर जो हसल नाही आलं त्याच्याकडे बघून, तर दुसरा आपल्या एखाद्या मित्राला द्यायचा। पार्टनरशिप करा तेवढ्यासाठी की आय विल राईट 3 आन्सर्स, यू राईट 3 आन्सर्स, यू चेक माय आन्सर, आय विल चेक युअर आन्सर्स. पण त्यासाठी पहिले चेक काय करा की ते खरंच देण्यासारखं आहे का. सो वेन यू रीड युअर आन्सर्स, इफ यू से की अरे नाही मजा नाही आली आन्सर मध्ये, मीन्स यू नीड टू प्रिपेअर अ लॉट.
But if you give your answers, if you feel it, yeah, these are good answers. If you give to your friend, forget what he will say. When you get his answers to check, what you will think about his answer is very similar thing what is he is thinking about your answer. And if you say, अरे हा पॉइंट नाही लिहिला, हा पॉइंट नाही लिहिलं, हे काहीतरी वेगळंच दिलंय, believe me, if you can make out so many mistakes in that answer, examiner will make out more mistakes. Can we say so? That will give us an idea की बाबा अजून बराच काम करायचं बाकी. पहिलं तर हे आपल्याला first thing that we need to do is that we need to identify where do we stand. Then and only we will know now what is the distance that we have to cover. अरे बरोबर आहे की नाही? It is not only the case that I will keep on walking on the path till the time I reach. ते म्हणतात ना, शर्यत अजून संपली नाही कारण मी जिंकलो नाही. शर्यत संपून लोक घरी गेले, झोपले, आता पुढच्या वर्षी येणार परत. नाही, मी शर्यत नाही संपली. It's good attitude again, but you have to think it from other point of view also. That this is a competitive examination. You have to be better than other candidates. That is the only thing. So go into the psyche of the examiner. If examiner is checking the answer and आपके पहले के 5 आंसर उसने पढ़े, 5 आंसर शीट्स इवेल्युएट किए, आपका 6th आंसर शीट आया है, उसके बाद वो 20 आंसर शीट चेक करेगा. तो in that lot, if your answers stand out, then you are going to get that extra 1 mark, half mark, 1.5 mark. That is the most important aspect. अरे कुछ समझ रहे हो? और ये करना है लाइफ में. तो देखो और भी क्वेश्चन है आपके सामने. ये देखो एक क्वेश्चन, a growing feeling of regionalism is an important factor. होईल ना, पेशेंस माइंड. ठीक है. Growing feeling of regionalism is an important factor in the generation of demand for the separate state. सोपा क्वेश्चन, डिस्कस करायला सांग. आपण डिस्कशन मध्ये बेस्ट आहे. चहाच्या दुकानावर काय डिस्कस करतो? आपल्यासारखं डिस्कस कोणी करूच शकत नाही. मग करूया काय आन्सर मध्ये डिस्कस करायचं ना. काय म्हणतात, देर इज अ ग्रोइंग फिलिंग ऑफ रिजनलिझम इज अन इम्पॉर्टंट फॅक्टर. मीन्स इट इज नॉट द ओनली फॅक्टर. हे आयडेंटिफाय करायचं पहिलं. अंडरस्टूड? आन्सर मध्ये स्ट्रक्चर बनवायचं ना. नाव फर्स्ट आय अंडरस्टूड मेनी फॅक्टर्स आर देयर. इम्पॉर्टंट इज दिस वन. दिस इज माय फर्स्ट अंडरस्टँडिंग. In the generation for demand for separate state, there could be different demand. One of the demand is separate state. Understood? I will write very easy. We'll few examples also we will quote whenever we are discussing it. So what can we quote? Why it is happening? First most important aspect we will say that what is regionalism is introduction. Introduction लिहायला पाहिजे ना. So what is regionalism? We will introduce. तो कधी introduce करू शकतो आपण? Anybody can introduce anything. There is no problem. But can you introduce it in a simple, sweet and a very short manner? That is a skill. It will be possible if you have an exceptional writing skill. की म्हणजे बहुतेक खूप मोठे रायटरचं जे स्किल असतं त्या टाईपचं स्किल तुमच्यामध्ये नॅचरली डेव्हलप झाले किंवा स्कूलिंग कॉलेजमध्ये इट हॅज डेव्हलप्ड इन टू यू. And you can know if that is the skill. So you can write anything in a very nice manner. But normally that skill has to be developed, isn't it? So what can we do? We can do a smart study here. So a smart approach we can take. We can prepare our notes in a such a way that where most probably asked questions, we will make a ready-made introductions and conclusion. Now regionalism, almost alternate year they are asking questions on it. So can I, in my own notes, have an introduction that is 2 to 3 lines about regionalism? Let's say definition बना दिया, मैंने लिख लिया, 10 बार पढ़ा, रट लिया, एग्जाम में आया, लिख लिया, बात खत्म. Can we do that? Now this is a smart approach. कौन सा चीज का रट्टा मारना है ये भी तो पता होना चाहिए. कुछ चीजें रट्टा मार सकते हो, पर उसके लिए सोच समझ के करना पड़ेगा. तो मैंने रीजनलिज्म का बढ़िया सा एक ये बनाया था डेफिनेशन की. इट इज अ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी विच इज एसोसिएटेड विद द कल्चर एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ इट. जो भी डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा. दूसरा एंगल क्या, इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी. कैन वी से ये सेंस ऑफ आइडेंटिटी ऊपर ही तो आगे का आंसर लिखना है. कैसे मिलेगा सेंस ऑफ आइडेंटिटी? इट कुड बी अ कल्चरल आइडेंटिटी, इट कुड बी अ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, isn't it? Now I am writing multiple points here.
तो जब भी मैं पॉइंट लूंगा एग्जाम्पल देना ही देना है. फॉर एन एग्जाम्पल व्हेन आई एम सेइंग लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के ऊपर स्टेट बनेगा, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट. तो ऐसा उन्होंने थोड़ी लिखा है कि रिसेंट एग्जाम्पल दो. आई कैन गिव ओल्ड वाला एग्जाम्पल आल्सो ना. ओल्ड मतलब ऐसे मत जाओ मतलब कि तनिष्क के का टाइम पे कनिष्क के, वो नहीं बात. मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के, बट पुराने एग्जाम्पल दे सकते हो. तो गिव एग्जाम्पल. बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ओनली. गुजरात फॉर गुजराती, मराठा महाराष्ट्र फॉर मराठी. इसीलिए तो झगड़ा हुआ बॉम्बे के ऊपर. बोथ पॉपुलेशन वाज देयर इन अ डोमिनेंट रे. तो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर ही तो डिस्टिंग्विश हुआ. दे दिया एग्जाम्पल. इजंट इट? लैंग्वेज कल्चर का भी पॉइंट बता सकते हो. बिकॉज व्हाट विल हैपन, there will be always a very strong feeling of attachment of that social group or an individual because they have a similar culture. That is also one of the reason. For an example, give example of northeastern states. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आज जैसे 7 सिस्टर्स दिखती है नॉर्थ ईस्ट में, वैसे थोड़ी ना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था. इतने स्टेट थे ही नहीं. तो जो भी स्टेट बने कैसे बने देखो, नाम भी देखो उनके. क्या नाम है? नागालैंड. नागा आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी है. मणिपुर देखो. और भी तुम भी बताओ ना, मैं ही बता. हाँ, मिजोज मिजोरम. हाँ, आसामीज आसाम. इसीलिए तो झगड़ा भी कर रहे हैं ना. आसाम फॉर आसामीज ओनली. बंगाली कहाँ से आ गए? निकलो. एनआरसी का इशू, अरे पता है ना. जिसको नहीं पता वो लिख लो बाजू में. 2019-20 में चल रहा हुआ इशू है. और फिर उसकी तरफ देख के बोलना सच में यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. ये भी तो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे? हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस. इफ अ पर्टिकुलर रीजन फील्स दैट वी आर नेग्लेक्टेड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम बाय द नेशन और दैट पर्टिकुलर स्टेट, विद इन द स्टेट वी आर ऑलवेज नेग्लेक्टेड. हाँ, तो तेलंगाना. अरे तेलंगाना, अब विदर्भ भी दे सकते हो. तेलंगाना दे दो, सक्सेसफुल एग्जाम्पल है. सक्सेसफुल तेलंगाना. वही तो आर्ग्यूमेंट था तेलंगाना की जो पार्टी थी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हैदराबाद इज एक्चुअली इन तेलंगाना. सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू तो वही जनरेट होता है. ऑल द कोस्टल आंध्र प्रदेश पीपल आर टेकिंग इट अवे बिकॉज पॉलिटिकल लीडर्स आर फ्रॉम दैट रीजन. सेम आर्ग्यूमेंट विद वेस्टर्न महाराष्ट्र वर्सेस विदर्भ मेनी ऑफ द टाइम, राइट. और क्या बोल सकते हो? हाँ, बोल सकते हो. तो ये अभी अल्टरनेट पॉइंट में लिखेंगे. नॉट ऑलवेज बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज नॉट ऑलवेज द रीजन. सम रीजन्स आर आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव. जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सेपरेट. उत्तर प्रदेश प्लेन टेरेन है, उत्तराखंड हिली टेरेन है. अब वहां पे कहां पे बैठ के कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है? हाँ, बहुत दूर है उत्तराखंड रीजन से. वहां पे बैठ के वो चीफ मिनिस्टर कब ध्यान देगा छोटे से एरिया हिली टेरेन के बारे में? वो तो प्लेन बड़े एरिया के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा. सो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन टू सेपरेट इट एज अ स्टेट. तो फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म may be there, but dominant factor was administrative reason. Can we say so? Think about it. झारखंड सेपरेट किया. यस, ट्राइबल आइडेंटिटी का एक मुद्दा था. वो भी लिख सकते हो, आपका चॉइस है. 20 पॉइंट को ऊपर लिखना है नीचे लिखना है. ऊपर लिख लो ट्राइबल आइडेंटिटी सेपरेट, कल्चरल आइडेंटिटी झारखंड, मुक्ति मोर्चा का प्रोटेस्ट, झारखंड सेपरेट हो गया. छत्तीसगढ़ के बारे में ऐसा कुछ नहीं है. छत्तीसगढ़ बिकॉज मध्य प्रदेश वाज टू बिग स्टेट टू एडमिनिस्टर. हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर है. झारखंड का इकोनॉमिक फैक्टर भी है क्योंकि झारखंड में बहुत सारे माइनिंग्स है, कोल माइंस है. तो बिहार और उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट होना चाहिए, इसीलिए भी झारखंड को सेपरेट किया. तो बेटे क्या मिले क्या? 7-8 पॉइंट. तो ऊपर 5 पॉइंट लिखो, नीचे 3 पॉइंट लिखो, बात खत्म करो कंक्लूड करके. क्या कंक्लूड करोगे? यस, रीजनलिज्म एग्जिस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया. The sense of identity on the basis of it always remains the most important aspect that has led into क्या बोलोगे? Multiple states happen in India and the process is still going on. क्या बताओगे एग्जाम्पल में? उसको भी तो एग्जाम्पल दे दो. हाँ, गोरखालैंड का डिमांड है ना वेस्ट बंगाल से. बोडोलैंड का डिमांड है. हाँ, बस 2 एग्जाम्पल की बात खत्म. क्या लिखा कंक्लूजन में? कंक्लूजन में लिखा कि हाँ ये बात है,
ये देखो मैंने कंक्लूड करके आर्गुमेंट लिखा कि ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, which actually the political thinkers thought about when state reorganization happened in 1956. अरे हुआ ना, तो लोगों को लगा हो जाएगा, एक बार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो गए रीजनलिज्म का इशू खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। पॉलिटिक्स में भी हमेशा चला, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ इट सेंट्रल पार्टी, वन नेशनल पार्टी, कपल ऑफ नेशनल पार्टीज वर रूलिंग ओवर इंडिया। देखो अब रीजनल पार्टीज भी बन गए, किसकी वजह से बने? बिकॉज रीजनलिज्म इज स्टिल अ पोर्टेंट इशू which is going into different aspect of social life. अरे समझ गए? तो ऐसे करके आप उसको कंक्लूड भी कर सकते हैं, समझ गए? राइट? सेकंड क्वेश्चन ना, देखो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन देख के क्या पता चला? एग्जैक्टली what do you understand by reading this question? कि बाउंसर आ सकता है। अरे बाउंसर है ना ये, द कंट्री ऑफ क्रिकेट लवर्स। बाउंसर का मतलब तो समझते हो ना? अरे वो वाला नहीं जो पब के बाहर खड़ा रहता, वो वाला नहीं। यंग जनरेशन क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पे। ये मतलब बाउंसर इज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले। इसमें दो ही चीज हो सकती है, एक तो आप डक करो, छोड़ दो उसको, डॉट बॉल चला जाएगा, नो रन्स, मतलब छोड़ दिया आंसर, मार्क्स नहीं आएंगे इसमें। या मारो, फिर मारने के बाद दो ही चीजें हो सकती है, एक तो जाएगा छक्का मतलब मैक्सिमम मार्क्स, नहीं तो हो जाएगा कैच आउट। अरे सही है ना? यही होगा इस क्वेश्चन। और जिसको पता है इसका मतलब, ठीक है लिख लो, मार लो 6 कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग ये आंसर लिखेंगे नहीं तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया। सही है ना? जो आंसर सब लोग लिख रहे हैं उसमें दूसरे के आगे जाना बहुत डिफिकल्ट है, वहां पे मारा मारी आधे मार्क के लिए। सही है ना? बट जो क्वेश्चन कोई नहीं लिख रहा उसमें अगर 4 भी मार्क आ गए चलेगा ना, वो भी हो गया चौका। तो ये एडवांटेज है। बट इसमें आउट होने का भी चांस ज्यादा है। आपको लगता है आपको पता है, आपने लिखा जो गलत है। पैलिएटिव केयर, कुछ ऐसे लग रहा है कि ऐसे कुछ लग रहा है, कुछ पब के बारे में लग रहा है, ऐसे करते हैं लोग। लिख लिया, बट लिख लिया, उससे क्या फायदा हो? उसमें तो आंसर में मार्क्स आएंगे ही नहीं आएंगे, बट निगेटिव इंप्रेशन हो गया। एग्जामिनर बोलेगा ब्लफ करता है। दिस इज वेरी बैड थिंग टू हैपन विद एनी कैंडिडेट हु इज राइटिंग एन आंसर इन मेंस आल्सो, इन इंटरव्यू आल्सो। प्रीलिम में छूट गए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर एग्जामिनर को फील आ गया कि ये ब्लफ करता है तो इंटरव्यू में तो फिर तो गया इंटरव्यू, आप समझ लो बहुत कम मार्क्स आएंगे कि झूठ बोलता है, ये पकड़ा गया। वही तो चेक करे ना वो कि इसको पावर दे कि नहीं दे। झूठा इंसान को पावर दे हो तो फिर सत्यानाशी कर देगा दुनिया। मेंस में अगर उनको पता चला कि ये तो झूठ लिखता है, फिर आगे के आंसर्स बहुत क्रिटिकली इवेल्युएट होंगे। वो पढ़ेगा हर चीज, ये क्या लिख रहा है। अगर आपने लिखा कि दिस एनजीओ इज वर्किंग इन दिस, सर्च करेगा, फिर तो नहीं करेगा। बट आर्गुमेंट इज कि वो सोचेगा सच में लिखा है नहीं लिखा। तो ये फिर बाउंसर है। आप समझ रहे हो बाउंसर का मतलब? एक तो डक करके छोड़ दो, बी सेफ लाइक एनी अदर प्लेयर, या फिर टेक अ रिस्क। बट रिस्क लेने में भी फिर यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो पैलिएटिव केयर तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होते हैं लाइक कैंसर, हाइपरटेंशन, आप सब लोगों को जो होता है हमेशा, राइट? या फिर हाँ एंजाइटी, वो अभी वही सेम ही बात है। या यू कैन टॉक अबाउट लेट्स से डायबिटीज। सो द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है ना, इसकी केयर के लिए अलग सा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। उसमें दूसरा पॉइंट भी एक होता है कि पीपल आर टेकिंग मल्टीपल मेडिकल ट्रीटमेंट्स फॉर दिस टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। डायबिटीज का एग्जांपल, इट्स वेरी वेल नोन हैपनिंग अराउंड अस। अब देखो जिसको डायबिटीज होगा ना वो सबके पास जाएगा, एलोपैथी वाले के पास जाएगा, थोड़ी दिन दवाई खाएगा, फिर किसी बोलेगा नहीं होम्योपैथी ये बढ़िया इंसान है, ये होम्योपैथी वाले के पास जाएंगे। फिर कोई बोलेगा अरे वो मजा नहीं है, आयुर्वेद वाले के पास जाए, फिर नेचुरोपैथी वाले के पास जाएगा, फिर कुछ नहीं चल रहा है बाबा के पास जाएगा। तो व्हाट वी आर राइटिंग हियर, too many medical practices but it is not improving the life standard, or life standard matlab it's health of that individual. But what is the problem that is happening?
that it is putting that person family into financial risk, because medical treatments are very costly in India, and the second aspect is very less percentage of the population is insured. ये भी बताना पड़ेगा, समझ रहे हो? इसीलिए पैलिएटिव जो केयर है ये इंपॉर्टेंट बनता है. दूसरी चीज क्या है कि ये अभी जो हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, इसमें इसको लाने के लिए बात किया गया है. बट इसके लिए जो पैलिएटिव केयर जो है वो कैंसर तक रिस्ट्रिक्ट किया है, बाकी दूसरे डिसीजेस उसमें लिए नहीं है. तो इसीलिए ये करंट अफेयर्स में डिस्कशन में था, कुछ आर्टिकल्स आए थे. इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज कंटेंट तो जनरेट होगा ही होगा, डायनामिज्म आएगा. ऐसा जो बाउंसर आएगा वो करंट से आएगा, और हर साल एक आध दो बाउंसर यूपीएससी डाल ही रही है क्वेश्चन पेपर में. अब देखना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट में आता है, राइट? तो ये एंगल से आप उसको देख सकते हो. बाकी मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें इसमें लिखी है, जो मॉडल आंसर बने हैं उसमें से आप पढ़ लो, और उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पैलिएटिव केयर के बारे में सोशल एंगल से उसको देखना है. बट ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस इज दिस वन, एंड देन वी विल स्टॉप, क्योंकि आप सब लोगों को भूख लगी, आई नो इट. ओके, climate change is a global challenge, but it affects if its effects are far from gender neutral. पहले तो एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद दो रिएक्शन आते. जैसे क्वेश्चन पढ़ना शुरू होते क्लाइमेट चेंज, बोलते मस्त है क्लाइमेट चेंज, मैंने पढ़ा हुआ है. जैसे जैसे आगे बोलते जेंडर न्यूट्रल, ये तो बच्चे की जान लेने वाला क्वेश्चन है. ये कैसे कनेक्ट करना, सोसाइटी के साथ क्लाइमेट चेंज कैसे कनेक्ट कर रही नहीं यूपीएससी. इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन. दो सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ के करेंगे, और ये सोसाइटी में बहुत बार होगा. इकोनॉमिक्स सोसाइटी को क्लब करके पॉवर्टी का क्वेश्चन पक्का पूछे, पॉपुलेशन का क्वेश्चन पूछेंगे, डेमोग्राफी और सोसाइटी को क्लब करके. ज्योग्राफी और सोसाइटी को कनेक्ट करके भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. यही क्वेश्चन है. अब इसमें तो थोड़ा और कंफ्यूजन है, क्योंकि जीएस पेपर 1 लिख रहे हो ना. अगर पॉवर्टी का क्वेश्चन आ जाएगा तो दिमाग चलेगा कि जीएस 3 का पेपर तो नहीं चल रहा है, तो इकोनॉमिक्स नहीं लिखना है. बट चलना चाहिए दिमाग, ये तो दिमाग चलना चाहिए ना. अरे समझ रहे हो ना, ये सोचा नहीं था, बट समझो. अगर क्वेश्चन आया है जीएस पेपर 1 में बैठे हो और कुछ पॉवर्टी के बारे में पूछा है, इकोनॉमिक्स लिख के नहीं आना है. इकोनॉमिक्स विल बी वन ऑफ द पॉइंट, सोशल उसका एनालिसिस विल बी मोर पॉइंट्स, तब आंसर आएंगे, मार्क्स आएंगे आंसर में. यही तो रीजन हुआ 2023 में मार्क्स नहीं आए लोगों के, क्योंकि उन्होंने लिखा बट उन्होंने डिमांड सेटिस्फाई नहीं किया. समझ रहे हो? बट यहाँ पे ओवर कंफ्यूजन है, क्योंकि जीएस पेपर 1 में तो ज्योग्राफी भी है, सोसाइटी भी है. तो अभी डिसाइड कैसे करना है कि क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है. आई हैव टू अंडरस्टैंड ना कि प्राइमरी डिमांड क्या है, सोसाइटी का डिमांड है या ज्योग्राफी का डिमांड है. ये तो पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आप बोलोगे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा सर. और एक एग्जांपल देता हूं, 2023 में क्वेश्चन आया था, देखो. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी आर सीन इन द कंटेम्परेरी सोसाइटी. आया था कि क्वेश्चन? आप तो हाई बोलोगे, देखा नहीं हो तो. आया है, देखना क्वेश्चन पेपर. अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए कि लिखना क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री लिखना है या सोसाइटी लिखना है. दोनों लिखना है कंबाइन करके, फोकस विल बी ऑन सोसाइटी. क्योंकि पूछा क्या है, ऐसे कौन से वैदिक सोसाइटी के फीचर है वो आज भी कंटिन्यू करते हैं. तो वो जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है कि कैसे इंडिया में ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी को एग्जिस्ट करता है. वैदिक सोसाइटी इज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, कंटेम्परेरी सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी. तो वो बताओ कि कौन से फीचर कंटिन्यू किए. तो ये भी आप बता सकते हो कि इंडियन सोसाइटी इज अ सोसाइटी ऑफ कंटिन्यूअंस, ब्रेक नहीं हुआ बीच में. ये भी तो आर्गुमेंट लिखने, बीच बीच में फीचर डालते चलो एज एन एग्जांपल कि हाँ देखो, ये देखो आइडल वर्शिप, ये फीचर है वैदिक सोसाइटी, आज भी है. मैं सुबह ही जाके आया एग्जाम के पहले, ये नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक है. आइडल वर्शिप स्टिल हैपन इन इंडिया. आप देखो, होम हवन स्टिल हैपेंस इन इंडिया, कंसेप्ट ऑफ सैक्रिफाइस स्टिल देयर इन द सोसाइटी, एंड यू कैन राइट लॉट ऑफ द अदर थिंग्स, राइट. अरे आप समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन क्या है, यस ज्योग्राफी और सोसाइटी को मिक्स है.
टेंडिंग मोर टुवर्ड द सोसाइटी, तो डिमांड है सोसाइटी का आंसर लिखो, सपोर्ट उसको ज्योग्राफिकल आर्गुमेंट से करो। ये जिसको समझ में आया आधा बैटल तो जीत लिया उसने। अब उसको सोचना है कि लिखना क्या है, तो क्या लिखेंगे इसमें बताओ। The domestic sources for fuel, which women use most of the time in cooking, they are dirty sources, and 90% of the time women are the ones who do the chores, and that's why women are affected because of the emissions which are generated because of that. ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं हाउस, क्या बोल सकते हैं, इंडोर एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। मोस्टली इन रूरल एरिया जहाँ पे उन्होंने डर्टी बोला, लोग वहीं पे रुक गए थे। डर्टी सोर्सेस का मतलब क्या है? बायोमास being used, mostly wood, cow dung. Generally, why is using it dirty as a word? Because it creates a lot of pollution, particularly air pollution. तो indoor gas pollution का शिकार होती है। Obviously, because it is a patriarchal society, woman is cooking food. अरे आप समझ रहे हो ना? तो ये आर्गुमेंट है। चलो एक बढ़िया पॉइंट मिल गया, और बताइए फिर। हाँ बताते चलो। हाँ हाँ, ये भी बढ़िया पॉइंट है। वाटर स्केर्सिटी एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज, फेचिंग द वाटर इज अ डोमेस्टिक रिस्पांसिबिलिटी अटैच्ड टू जेंडर, नॉट अ जेंडर न्यूट्रल थिंग, इज इट? हाँ बताओ। ओके, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, यस बताओ। ऐकून आहेत मोठ्यानं लिहू शकता बट प्रायमरीली वेन जेंडर न्यूट्रलिटीचे आर्ग्युमेंट आहे, मेन वर्सेस वुमन हीच डिबेट मांडायची। एखादा पॉईंट नक्की लिहू शकता, ट्रान्सजेंडर्स आर द मोस्ट वल्नरेबल इन दिस पर्टिक्युलर केस। लास्ट पॉईंट नक्की लिहा, एक एक्स्ट्रा मार्क मिळून जाऊ शकतो। येस, अजून वुमन इज अ वीकर जेंडर आणि जेव्हा फूड सिक्युरिटी नसते ऑलवेज मेल चाइल्डला प्रेफरन्स देतात। येस, तर पण त्याचं पण कनेक्शन द्यायला लागेल, क्लायमेट चेंज कसा इम्पॅक्ट करेल फूड सिक्युरिटीला, ते आर्ग्युमेंट पहिले लिहायला लागेल आणि मग हे सांगावं लागेल। तर बघा 5-6 पॉईंट। येस, हा एक्सलंट पॉइंट, बघा एक्सलंट पॉइंट। बघा जे 5-6 पॉईंट तुम्ही जनरेट केले ते जोडे आणि कसे एक्झाम्पल लिहू शकतो बघा। तो व्हॉट वी विल राईट, सी आता सिक्वेन्स तुम्ही ठरवू शकता, ऑल आर इम्पॉर्टंट पॉइंट, बट आय विल स्टार्ट विथ दिस, आय विल स्टार्ट विथ ऍग्रीकल्चर। वाय थिंक अबाउट इट। नंबर ऑफ पॉप्युलेशन असोसिएटेड विथ इट, सो इट इज अफेक्टिंग द लार्जर सेक्शन, सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू, बरोबर आहे का? तो व्हॉट आय विल राईट, climate change impacts agriculture. It will result into sub points, bullet points. काय लिहू शकतो फूड सिक्युरिटीचा पॉइंट। ऍग्रिकल्चरवर इम्पॅक्ट झाला, फूड सिक्युरिटी इम्पॅक्ट होते, आणि वुमन हु इज निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द फॅमिली जास्त त्याचा इम्पॅक्ट त्याच्यावर होईल। सेकंड पॉइंट आय विल बी रायटिंग इज अ व्हेरी एक्सलंट पॉइंट, वी हॅव डिस्कस्ड इट इन द क्लास but nobody thought it to use it. We'll talk about feminization of agriculture. This is an argument that Indian agriculture is getting feminized. मतलब more women are working in agricultural fields now as compared to male. Why? Because male can migrate to urban area, now connected to society, because mobility is associated with gender. Somebody from the house, somebody from the family has to go to the city to earn extra money, then male will go. Why? Because male are allowed to go, less social restrictions. अरे कळालं का? तो पॉइंट इथे तुम्ही लिहू शकता। वॉटर स्केर्सिटीचा पॉइंट लिहू शकता, एक्सलंट पॉइंट। त्याचबरोबर तुम्ही हेल्थ इम्पॅक्ट लिहा, सेकंड पॉइंट आय विल राईट हेल्थ इम्पॅक्ट। तो ऍग्रिकल्चर आणि वॉटर स्केर्सिटीचा पॉइंट मी लिहिले, मग त्याच्यानंतर हेल्थ इम्पॅक्ट लिहा। एअर पोल्युशनचा एक्सलंट पॉइंट विदिन हेल्थ काय सांगू शकता, कुकिंग इज अ प्रायमरली ऍक्टिव्हिटी असोसिएटेड वुमन. In most of the rural area, biomass is which is creating indoor pollution, which is affecting the women and children in the house. थोडा वाढू ना, broaden the horizon. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अजून एक एक्सलंट पॉइंट आपण त्याच्यात लिहू शकतो की एक एक्सलंट पॉइंट लिहू शकतो की क्लायमेट चेंज अफेक्टेड डिझास्टर्स ऑल्सो वुमनला जास्त अफेक्ट करतात. विल गिव्ह एन एक्झाम्पल. उत्तराखंड फ्लड्स आठवतात का? इन 2013 उत्तराखंडमध्ये मोठे मोठे फ्लड्स आले.
सगळ्यांना ते महादेवाची मूर्ती आठवत असेल, अर्धी पाण्यात बुडलेली, असं तो चित्र सगळ्यांनी सोशल मीडियावर दॅट वेअर दॅट फ्लड्स. रिमेंबर इट इज अ मोर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्लायमेट चेंज अफेक्टेड इन्सिडन्स इन इंडिया. त्याच्यावर मेन्स मध्ये युपीएससी मध्ये 2014, 15, 16, 17 मध्ये दोनदा तीनदा प्रश्न पण येऊन गेले. तर तुम्हाला एक्झाम्पल म्हणून कोट करायला माहित पाहिजे. तर उत्तराखंडमध्ये 2013 मध्ये जेव्हा फ्लड्स आले तर त्याच्यामध्ये जे यंग वुमन आणि प्रेग्नंट वुमन होते, जे तिथे लोक अडकले होते, त्याच्यामध्ये बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन दॅट पर्टिक्युलर रिजन, मोस्ट अफेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसायटी वॉज प्रेग्नंट वुमन अँड यंग वुमन. एक्झाम्पल, अरे कळालं का? हाऊ क्लायमेट चेंज रिलेटेड नॅचरल डिझास्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द वुमन मोर. मेन लेस डिझास्टर आला, मेन ते गेले झाडांवरनं उड्या बिड्या मारून इकडे तिकडून पळून. वुमन गॉट स्टक देअर. हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर वीकली अवेलेबल. नाउ थिंक अबाउट प्रेग्नंट वुमन ना, इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर दॅट पर्टिक्युलर लेडी. अजून काय सांगू शकतो? इकॉनॉमी डिस्पॅरिटी बद्दल सांगा. मोस्टली वुमन वर्क इन इन्फॉर्मल सेक्टर. इन आउटसाइड द हाऊस ऑल्सो, इनसाइड द हाऊस. आउटसाइड द हाऊस म्हटलं वर्किंग इन द इन्फॉर्मल सेक्टर. व्हॉट विल हॅपन? फर्स्ट थिंग, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट. Second thing, less social security and other securities at workplace. Then what will happen? तर सगळ्यात आता आजचं एक्झाम्पल, न्यूजपेपरचं एक्झाम्पल देऊन टाकू. व्हॉट आर दे टॉकिंग? देर इज अ हीट वेव्ह हॅपनिंग इन नॉर्थ इंडिया. जा अजून दिल्लीला अभ्यास करायला. आपण इथं मस्त पाऊस बिऊस पडतो, एन्जॉय, भजी खायचे, अभ्यास करायला, लाईफ एन्जॉय. ठीक आहे. So heat wave is happening. So what will happen? Energy consumption will increase, na? People will be using more electricity, fan, AC, etc., etc. So who will be the affected people here in this particular case? Who are employed in informal sector? त्यांच्या वर्कप्लेस मध्ये पण ह्या फॅसिलिटी नसतील. ते कमी पैसे कमवतील, which is not also a stable income, so they cannot spend on that aspect because of this area. आणि वुमन त्याच्यामध्ये जास्त अफेक्टेड असतील. मायग्रेशन पॅटर्नचा पॉईंट लिहू शकता. त्यांनी एक्सप्लेन त्याच्यामध्ये केलं होतं की कसं होतं. तर इट्स अ मायग्रेशन इज असोसिएटेड विथ सोशल मोबिलिटी. हु आर अलाउड टू मूव्ह फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया. सिम्प्लिस्टिक ऍस्पेक्ट ऑफ मोबिलिटी. ऑब्विसली सोसायटल रिस्ट्रिक्शन आणि याच्या गोष्टीमध्ये त्या आहेत. अजून एक पॉईंट लिहू शकतो, एज्युकेशन अँड इन्फॉर्मेशन ऍक्सेस. कोणाला जास्त आहे सोसायटीमध्ये? ऑब्विसली male have a more educational and informational access, so they can know about it and prepare for it in a better way as compared to the girls or females in the society. Leadership and decision making position, जे तसं आर्ग्युमेंट करत होते, less representation in the political community level, political level मध्ये, गव्हर्नमेंट मध्ये वुमनचं कमी पार्टिसिपेशन आहे, and that's why leadership आणि डिसिजन मेकिंग मध्ये ते नाहीये. सोशली कल्चरल कन्स्टेंट पण सांगू शकता. जसं की आपण म्हटलं, केअर गिव्हिंग इज अ वुमन स्पेसिफिक टास्क इन पॅट्रियार्कल सोसायटी. कॅन वी से सो? दीज आर सोशल रिस्ट्रिक्शन्स ना, आणि कल्चरल रिस्ट्रिक्शन्स. नाउ गिव्ह एन एक्झाम्पल ना. कसं? तर सुनामी आली होती बघा इंडियन ओशन मध्ये. कधी आली होती रे? 2004. द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. देर इज अ रिपोर्ट which says that more women died in Indian tsunami as compared to men, and they are associating it with, because they were in the home during the time of tsunami, they did not understand when it happened. When it happened, they died. Associated with the care giving role of a woman because of the gender issue. ते घरात होते ना. ठीक आहे. नाउ दीज आर डिफरंट पॉइंट्स दॅट यू कॅन राईट. आय थिंक आपण 7-8 पॉईंट पेक्षा जास्त पॉईंट जनरेट केले. अरे कळालं का कसं जनरेट करायचं, कशी एक्झाम्पल्स द्यायचे, आणि एक्झाम्पल देताना ते कसं, विच शॅल बी व्हेरी व्हेरी रिलेटेड टू द क्वेश्चन दॅट हॅज बीन आस्क्ड इन द एक्झामिनेशन. अंडरस्टूड? सो दॅट इज हाऊ वी आर डिस्कस आय थिंक 4-5 क्वेश्चंस. सो वॉट एव्हर विल द मॉडेल आन्सर वाला चीज, I will upload it on Telegram channel. You can go and read through it. Right? Some of the points that we have discussed mean So with your permission, I will take 2 more minutes. Okay.
So I will upload it on the Telegram channel. The name of the Telegram channel is Shivaji Kale Sociology and Social Issues. You can find it out there, open to all. But some of the points that we have discussed are not there in the model answer wala copy. It is very generally prepared, but we have added some new points into discussion. And the second thing, which will be the last thing I will be talking about, is now today you are understanding how an answer shall be written, and that's why this workshop is arranged. But I will tell you, knowing something will not be only sufficient. You need to practice it. Practice, you can do it at your home also, but believe me, it will not be structured. It will not be sustainable. If you guarantee it yourself that I will do it for continuously 4 months or till the December, मी सगळा अभ्यास करेल, ऑप्शनल पण करेल, जीएस पण करेल, सगळे आन्सर देईल, that is okay. But if you do not feel that you are not that disciplined, then you can take advantage of that answer writing program that is starting, I think, mid of July, and that will go till the November end, I think, right? So take a look at it on the ground floor. The timetable is there, displayed there. So you can go and take a look at it and try to write it. It will be an advantage to you all people. Understood? That. And along with that, if you have any specific doubt related to Indian society, then I will be available. After the session also I will be available. Otherwise, you can drop me an SMS. We can meet whenever the time will be available. Okay? Chalo. Any more doubts? रुकते हैं फिर? चलो. Thank you everybody. अरे thank you.